Good day, students. Today we are going to continue our chapter 3, that is planning. We have already studied about the characteristic of planning, right, in previous lectures. So, today we are going to continue our topic, that is importance of planning. Why the planning is important in business and every field. So, here is the point. First one, all activities are done systematically due to planning. Because of planning, if we have planned properly, then all the activities are going to work in systematically and orderly. No work should be incompleted. So, because of the planning, all the activities are going to work in sequence manner. Second, wastage of resources can be avoided. Because of a planning, our resources cannot be avoided. Means any resources cannot be wastage because of a planning, like resources like machines, method, money, uh, employees. Because of a planning कोई भी resources waste नहीं होगा. Third, planning reduce future uncertainties. Because of planning, it reduces the future uncertainties. We all know that future is uncertain, right? We do not know that in futures whether your planning is going to work or not, but it reduces our future uncertainties, right? Fourth, planning leads to precision. Now planning leads to the precision means a perfectness. Because of a planning, all the work going to be perfect. Fifth, useful for accomplishment of objective. Planning is very useful because we are planning for the future, and for future we want to achieve our objectives. Planning is very much useful to achieve those objectives. Sixth, smoothness in managerial functions. Now, because of planning, other managerial functions become worked in sequence manner. Now, there are various functions are there: organizing, staffing, directing, and controlling, coordinations. So, if the planning is proper, then all these other activities, other functions bring smoothness. प्लानिंग की वजह से बाकी के सारे फंक्शंस में स्मूथली वर्क होगा, ईजी वे में वर्क होगा. ठीक है. सेवेंथ, प्लानिंग इंक्रीज द एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन. बिकॉज ऑफ अ प्लानिंग it increase the cooperation among the employees. They will work together. Eighth, effective controls become possible. Now, all these, because of a planning, all the activities which we can control it, which we can direct it. If the planning according to plan is not done or not implemented, then we can find out the directions and we can justify them and come back with the same plan, right? So because of the planning, we can check all the activities, we can control all the activities, whatever is going on. So it brings effective controls in planning. Ninth, planning coordinate various activities. Because of the planning, all the activities are connected with each other, right? So all, because of a planning, all the activities are coordinated among each other, so our goals can be achieved. So these are the various points why planning is important in business and every field. Now let us see the next topic is limitations. Now there are some limitations in planning also. We have already seen about the characteristic of planning, right? So what are the limitations of planning? Now here it is given, planning is universal process. None of the fields can work with planning without planning, right? कोई भी फील्ड में कोई भी वर्क पहले नहीं होता. बिफोर द प्लानिंग इट्स नॉट हैपन, राइट? सो प्लानिंग की वजह से ही बाकी सारे काम होते, राइट? प्लानिंग इज़ अ गाइडिंग फैक्टर. इट इज़ अ गाइडिंग फैक्टर. हमें गाइड मतलब हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे परफेक्टली काम होना है, राइट? विच इज़ नाइदर परफेक्ट नॉट इनपरफेक्ट. आप प्लानिंग बनाते तो हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्लानिंग वर्कआउट करेगा ही, राइट? सो इट इज़, यहाँ पे ये बोला है कि इट इज़ नॉट परफेक्ट, इट इज़ नाइदर परफेक्ट और इम्परफेक्ट भी नहीं है. ठीक है. एज पर क्रिटिक्स एंड एक्सपर्ट्स,
द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलोज। तो बिकॉज ऑफ कुछ एक्सपर्ट्स मैनेजर ने कहा कि प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस भी है, क्रिटिक्स का है। फर्स्ट वन है अनसर्टन फ्यूचर। फर्स्ट मेन आपका यही आता है कि फ्यूचर हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, राइट। सो फ्यूचर के लिए हम अजम्पशंस करते, प्रेडिक्ट करते कि ये चीज़ें हो सकती है। तो फ्यूचर में हमें गोल्स अचीव करने हैं, तो हमारा फ्यूचर तो अनसर्टन है, ठीक है, फिक्स नहीं है ना कि चीज़ें होगी ही। फ्यूचर हमें पता ही नहीं कि क्या होगा, क्या चेंजेस आने वाले, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे जिसकी वजह से हम प्लान के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो ये एक पहला लिमिटेशन है, प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन। हम प्लानिंग किसके बेसिस पे बनाते हैं, हमारे अजम्पशंस पे। हम फोरकास्ट करते यानी कि प्रेडिक्ट करते कुछ किसी चीज़ को लेके, विच इज़ मेड फ्यूचर। किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए। और हमारा फ्यूचर क्या है, अनसर्टन है, हमें नहीं पता कि आगे फ्यूचर में वो चीज़ें होगी भी या नहीं, ठीक है। कोई भी कुछ भी फैक्टर्स आ गया जिसकी वजह से हमें प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल पाते। देयरफॉर अजम्पशन आर नॉट फुल्ली करेक्ट, हमारे अजम्पशन फुल्ली करेक्टेड नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट है अनसर्टन फ्यूचर। सेकेंड, एक्सपेंसिव प्रोसेस। प्लानिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज इट नीड्स अ टाइम, एनर्जी एंड मनी। ये तीनों चीज़ें, प्लानिंग जब आप करते हो उस टाइम पे आपका टाइम भी जाता है, एनर्जी जाती है, एफर्ट्स जाते हैं, और पैसे भी लगते हैं उतने, क्योंकि हम एक्सपर्ट हायर करते हैं, राइट, फॉर प्लानिंग। तो उसके लिए हमें पैसों फीस देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेंस है। प्लानिंग के लिए हमें प्लानिंग करने के लिए एक्सपेंस यानी कि टाइम जाता है, पैसे भी जाते हैं और हमारे एफर्ट्स भी जाते हैं। थर्ड पॉइंट है उसी का, टाइम कंज्यूमिंग। नाउ प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम टू प्लान द एक्टिविटीज, राइट। बिफोर टू assume we have to collect the informations, right. After collecting the information we have to analyze is whether it is this idea is work out or not, right. So it is a very lengthy process and it takes long time to plan out the objectives. Fourth है planning is irrelevant. Now planning irrelevant क्यों है, irrelevant means it sometimes the planning is not applicable because of the certain external factors. Planning involves the uncertainties. Planning becomes irrelevant because of a time, due to the time, circumstances और factors affecting business unit. ना एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ अफेक्ट करते जब आप प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हो उस टाइम पे, और सिचुएशन ऐसी हो जाती है जहाँ आप प्लानिंग के हिसाब से नहीं चल पाते, राइट। और बिकॉज ऑफ अ टाइम जो आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है शायद वो करेक्ट भी ना हो। सो ये भी एक लिमिटेशन है। फिफ्थ है टेंस टूवर्ड रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कि कई कबार आप सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज नहीं कर पाते हो। सो प्लानिंग इज अडॉप्टेड एज अ प्रोग्राम फॉर द फ्यूचर इफ़ एनी एडवर्स सिचुएशन ऑकर्स। एडवर्स यानी कोई भी ऐसा सिचुएशन ऑकर्स हुआ इन फ्यूचर, मैनेजर्स और एम्प्लॉय डू नॉट टेक द रिस्क ऑफ डेविएटिंग फ्रॉम द प्लान। कोई भी सिचुएशन आए इन फ्यूचर में तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। वंस द प्लान इज मेड बाय द मैनेजर फॉर द ऑब्जेक्टिव्स, he will not change their plan, he will stick to the plan, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों ये रिस्क नहीं लेते कि भाई नया हम प्लान बनाए, वो अपने जो प्लान बना दिया उस हिसाब से ही चलते। सो इट लीड्स टू द रिजिडिटी, ठीक है। वो इनएबिलिटी यानी कि मैनेजर्स इज इनेबल टू चेंज द प्लान बिकॉज ऑफ एनी सिचुएशन अकर्स इन फ्यूचर्स। Sixth है uncertainty of external factors. Business units are affected by external factors. Now moreover business unit जो भी फील्ड है वो ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स से ज़्यादा अफेक्ट होती है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स हमारे हाथ में कंट्रोल में होता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। जो भी चीज़ें हो जाए या तो कोई भी सुनामी या कुछ भी आ जाए बिजनेस को अफेक्ट करेगा। सो ये एक फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्लानिंग हमारा चेंज हो जाता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हैं जो हर बार चेंज होते हैं, इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी टाइम। तो ये हमें प्लानिंग का जो भी है वो सक्सेस नहीं हो पाता। सेवेंथ है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन।
whatever the information which is collected by the employees for the planning, maybe sometimes that information is incomplete and unclear, and because of that our plan become wrong, and जो भी रिजल्ट डिजायर्ड है वो हमें नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. Eighth point, restrictions on employees' creativity. Now, because of a planning, it restricts the employees' creativeness in the planning. Now, implementation of planning is done by employees now of the business unit. Through employees have creativity cannot make any changes in the planning during the इम्प्लीमेंटेशन. दस प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़. अगर मैनेजर ने कुछ प्लान बनाया है, ठीक है, तो वो प्लानिंग में अगर सोचो एम्प्लॉयज़ ने कुछ आइडियाज़ शेयर किया, क्रिएटिविटी दिखाई कि हम ऐसे करेंगे तो शायद हमारा टाइम नहीं जाएगा, उतना जल्दी काम होगा. बट मैनेजर क्या है, हमने जो प्लान किया उस हिसाब से ही चलना है, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ की क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है. उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि वो अपनी बात करें. 9. The use of faulty methods. By deciding the assumption and estimate, different mathematical and calculation methods are used. If these methods or information are not appropriate, faulty decisions can be taken. Thus, planning is liable to fail. प्लानिंग कब फेल होता है? जब आपके assumptions और estimate की वजह से आपने मैथड कैलकुलेशन किया हो और शायद वो मैथड आपने प्रॉपरली, मतलब वो अगर सुटेबल ना हो और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया और उस हिसाब से डिसीजन भी रॉन्ग होगा आपका, और डिसीजन रॉन्ग होगा मतलब आपका पूरा प्लानिंग फेल हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ यूजिंग द फॉल्टी मेथड्स while analyzing the plan, then planning becomes to fail in your business and your goals cannot be achieved. Other than this, many other factors are affected planning like changes in technology. बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो प्लानिंग को फेल करता है. जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई, देन इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स. कुछ फैक्ट्स आपने इग्नोर कर दिया हो, जो सच बात है उसी को आपने इग्नोर कर दिया हो. देन बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, अगर मैनेजर की लीडरशिप ही अच्छी नहीं है तो वो भी तभी कई बार प्लानिंग फेल हो सकता है. इन स्पाइट ऑफ इट, प्लानिंग अलाउज अस टू कंट्रोल द चेंज. इट इज़ फैक्ट दैट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव प्लान. कुछ अल्टरनेटिव प्लान तो है ही नहीं, पर प्लानिंग की वजह से हम कुछ चेंज ला सकते हैं. ठीक है, ऐसा तो नहीं कि हमने प्लानिंग किया और वो चीज़ें ना हो. हाँ, उसमें कुछ हमें चेंज करना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से हम वापस गोल्स के हिसाब से चल सकते हैं. सो योर द टॉपिक्स आर एंड. आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड. थैंक यू.